Welcome to our special broadcast just hours before the final result for Uttar Pradesh is out. But we get you the result before the result. 10 key seats which we are calling on times now thanks to our exit poll data. 10 seats that we have identified because of their significance to this election. Let's get you started. In fact, with the results, as we are calling it in Kairana, this significant seat in western Uttar Pradesh, where you have BJP's Mriganka Singh, daughter of Hukum Singh, who used to represent this area earlier in the Lok Sabha, going up against Nahid Hassan of the Samajwadi Party. Remember, the man is in jail, but what is the result going to be? Everyone will have their eyes on the results of this seat. The second seat that we are talking about is, in fact, we are going to get you all the seats. The Mathura is the second seat, where Pandit Shrikant Sharma, the power minister in the current government in Uttar Pradesh, is going up against Devendra Agarwal. A significant Brahmin population over here, as well as a Bania population. So you can imagine from the two people who are going up against each other. Sardhana, again another seat which is in western Uttar Pradesh, dominated by Jats. However, a Thakur candidate, Sangeet Som, who is also the sitting MLA, has been fielded again by the BJP despite fears that there could be anti-incumbency. He goes up against Atul Pradhan of the Samajwadi Party. Fazil Nagar is a very, very important seat this time around, and you can imagine why, because you have Surendra Kushwaha of the BJP taking on Swami Prasad Maurya of the Samajwadi Party. The man who is supposed to be a big ticket defection from BJP into Samajwadi Party, was earlier in BSP, then BJP, now in SP. Is he going to be able to pull his weight in Fazil Nagar, which not only has OBC population, OBC to which Swami Prasad Maurya belongs, but also a sizable Muslim population. We're going back between various regions and seats because these are seats not only affecting that one particular constituency, but also has a ripple effect around it. Thana Bhavan. Again, we come back to the west of Uttar Pradesh, where Suresh Rana, the Ganna Mantri, is being fielded yet again by the BJP from Thana Bhavan, and he goes up against Abhishek Mishra of the RLD. This seat was taken by the RLD in the Samajwadi Party RLD Gathbandhan. I'll take one more seat and then I'll take quick reactions from our guests. Kannauj Sadar. Why did we choose this seat? Because not only is it in the Kannauj Lok Sabha, which used to be represented by Dimple Yadav earlier, she lost last time around, but still a Yadav bastion. That entire area, Mainpuri, Kannauj. From here, BJP has chosen Asim Arun. Now, here's the interesting thing. This might be a Yadav dominated area, but also has a sizable Jatav population, and that is the caste to which Asim Arun, former IPS officer, very well known. He in fact had very good relations not just with leaders of the current dispensation, but also in the Samajwadi Party. Known to be a Singham of sorts, Asim Arun has been fielded from Kannauj Sadar, and he goes up against Anil Dohare of the Samajwadi Party. But before we reveal to you exactly what are we calling in each of these seats, let's get a quick word in. Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP, joining us along with Dr. R. Rajgopalan, senior journalist, Rohit Jakhar, national spokesperson of the RLD. Kaushal Kant Mishra, आज आप स्पोक्सपर्सन के हैसियत से नहीं, आप एक विश्लेषक की हैसियत से पहले बताइए कि कन्नौज सदर में कौन जीतेगा और क्यों? कौन तो आप कहेंगे बीजेपी, ये बताइए क्यों असीम अरुण क्यों जीतेंगे? असीम अरुण का आप कैरेक्टर देखिए, आप उनका बैकग्राउंड देखिए, जिस तरीके से जो एक पुलिस के आदमी को ला करके रखा गया है और उनको टिकट दिया गया है, तो एक छवि की बात होती है। एक जो न्यूट्रल आइडेंटिटी है पॉलिटिक्स से हट करके, इस तरह के कैरेक्टर को अगर ला करके पार्टी चेहरा बनाती है, तो मुझे लगता है ये तो इल्जाम लगाया जा रहा है कि देखिए, अगर वो उन्होंने फौरन से वीआरएस लेके बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो सोचिए जब वो आईपीएस थे तो फिर वो बीजेपी का ही हुक्म बजा रहे होंगे। आप न्यूट्रल कैसे कह रहे हैं? हो सकता है इनके खिलाफ काम करें? ये तो देखिए, विपक्ष
विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने बीजेपी क्यों ज्वाइन की? मैंने इसलिए बीजेपी ज्वाइन की, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मैं डायरेक्टर हूं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करता हूं। उसके बाद भी मुझे बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगी, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवादी पार्टी है। अगर कोई भी पार्टी जो राष्ट्रवादी अगर दिखती है, जितनी पार्टी है उसमें बीजेपी ज्यादा दिखती है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि असीम अरुण का जो पुराना हिस्ट्री है और उसके अलावा जो एक राष्ट्रवादी छवि की वजह से ज्वाइन किया है, और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रोहित जाखड़ जी, राष्ट्रवाद के सामने अनिल दौरे जी टिक पाएंगे के ऊपर होगा? राष्ट्रवाद के सामने मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद है क्या परिभाषित हो पाएगा? मेरे काबिल दोस्त भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, राष्ट्रवाद को परिभाषित कर पाएंगे? व्हाट इज राष्ट्रवाद? व्हाट इज सूडो नेशनलिज्म और नेशनलिज्म? लेट मी नो। चलिए कौशल कांत मिश्रा, जल्दी जवाब दे दीजिए। देखिए, राष्ट्रवाद ये होता है कि जब आप अपनी जो सत्ता 5 साल की चलाने की कोशिश करते हैं, जोड़ जुगाड़ से नहीं करते हैं, जब आप देश के लिए चलाते हैं, जब एक परिवार से उठ करके चलाते हैं, जब एक जाति से उठ करके चलाते हैं, जब एक धर्म से उठ करके चलाते हैं, तो आप राष्ट्रवादी होते हैं। देश की जो पॉलिसीज होती हैं, जब कोई भी पॉलिसी आती है जो राष्ट्र हित में होती है, जैसे कि आप देखिए जब हमने स्ट्राइक की थी, उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों और कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे, वो लोग राष्ट्रवादी नहीं कहे जा सकते। जब हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश रैंकिंग में 14वीं पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ गया है, जिस तरीके से आपने राष्ट्रवाद की परिभाषा बता दी, सेफ्टी सिक्योरिटी में नंबर, आप ये जवाब दीजिए रोहित जाखड़ साहब, राष्ट्रवाद अगर इनका कॉलिंग कार्ड है, आपकी पार्टी का, अनिल दोहरे जी का कॉलिंग कार्ड कन्नौज सदर में क्या है, ये बता दीजिए। क्यों जीतेंगे वो? किसान राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है और राष्ट्रवादी रहेगा। हमारे परिवार के बच्चे ही देश की सीमाओं पर तो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और हर वर्ष कई बच्चे हमारे शहीद होकर देश के ऊपर घर को लौटते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है, ये लोग अपनी परिभाषा बता रहे हैं। जिस संगठन ने देश को आजाद होने के बाद 70 वर्षों तक तिरंगा अपने नाम फहराया। अच्छा चलिए, अब आप 70 वर्षों में मत जाइए, अभी 70 घंटे भी नहीं बचे। अनिल दोहरे के बारे में मैं बता देती हूँ। लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द पर्सन हु इज गोइंग अप अगेंस्ट असीम अरुण. दिस बाय द वे इज अ रिजर्व्ड सीट and he was the one who won in the last election, so it's going to be a very close fight. But what are we calling in Kannauj Sadar? Let's show you the results of the Times Now veto poll. We are calling the seat of Kannauj Sadar in favor of, here it is, it's favor of the BJP. Mr. Rajgopalan, Kannauj Sadar is going to the BJP. Are you surprised? No, it's not surprised at all, because Samajwadi Party is getting rubbed there in Kannauj. Apart from that, my understanding, you talked about IAS, IPS. Why did you forget about the Indian Revenue Service officer, Rameshwar Singh in Lucknow? So therefore, Rashtravad means those who have been in high power position, they leave the job and join a party to serve the nation, not Parivar. Serving the nation is... Serving nation, not Parivar. I want to quickly go to the next few seats. Let's take a look at Mau. In Mau seat, Abbas Ansari has been fielded by the Samajwadi Party, SBSP and RLD Gathbandhan, but he is not on a Samajwadi Party ticket. Abbas Ansari, Mukhtar Ansari's son, is on a Suhail Dev Bharatiya Samaj Party ticket and he goes up against Ashok Singh of the BJP. बताइए, let me start now with the RLD. रोहित जाखड़ साहब, ये बताइए, अब्बास अंसारी को जिता करके आप खुश महसूस करेंगे? माफिया का टैग लग जाएगा आप पे भी? क्या? कैन यू पार्डन प्लीज? Yes, the question to you is, Abbas Ansari is a प्रत्याशी of your alliance. वो जीत तो जाएंगे शायद, बट माफिया का टैग कैसे छुड़ाएंगे? देखिए, माफिया का टैग कोई भी व्यक्ति वो जस्टिफाई नहीं हो सकता जब तक कोर्ट उसे कहना, मतलब
कंटेम्प्ट ना कर दे, उसके खिलाफ सजा मुकर्रर ना कर दे। अच्छा। और अब्बास अंसारी पे कोई मुकदमा, अब्बास अंसारी पे इस कोई मुकदमा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, पर 3 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जब हमारी सत्ता आएगी ना तो ट्रांसफर बाद में करेंगे, पहले मैं हिसाब करूंगा सारे आईपीएस अफसरों का। अब्बास अंसारी के खिलाफ केस आप सच बोल रहे हैं, कोई नहीं है, भारतीय जनता पर हिसाब किताब का वो लेके बैठे पोथा। जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू से पैदा नहीं है। वो किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे? चुनाव के दौरान पार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो लोग नहीं करते हैं वो गलत है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। चलिए, अब्बास अंसारी वर्सेस अशोक सिंह, कौन अहेड है मिस्टर राजगोपालन? हुज अहेड? अशोक सिंह। Why is Ashok Singh? I mean, let's be honest. Mukhtar Ansari यहाँ के बाहुबली है. He might be in jail. There might be cases against him, but वो बाहुबली हैं. How can you say Ashok Singh will win, Mr. Rajgopalan? Padmaja, polarization is deep rooted in Mao constituency. Though I have not gone there, last time I went there, it's a very thickly dominated Muslim area, but people are unhappy with Abbas Ansari also. The reason being, पार्लियामेंट्री पार्टी लैंग्वेज अभी जाकर साहब ने बोल रहे थे, अखिलेश यादव ने 2 गधे बोला था। किसको बोला था? गुजरात से 2 गधे, वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है क्या? सो ऐसे इस टाइम पर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज मतलब चुनाव पेपर तू में तो होता है, लेकिन okay, let's face it, it is not about language, it is about delivery, and largely जिन लोगों को हम यहाँ दिल्ली में बैठ के बाहुबली कहते हैं उनको रॉबिन हुड ऑफ सॉर्ट्स भी माना जाता है. So let's see which way. Times Now veto poll is calling this very important seat of Mau. It is going to Abbas Ansari. Kaushal Kant Mishra, quick reaction. Abbas Ansari जीतेंगे? देखिए, अब्बास अंसारी जीतेंगे क्योंकि वहां का जो मैकेनिक्स है, वहां का जो पॉलिटिक्स है, वहां का जो कास्ट कंपोजिशन एंड रिलीजियस कंपोजिशन है, उस बेसिस पे, और ये एक तरीके से कहा जाए सीट ट्रांसफर हो रही है मुख्तार अंसारी से अब्बास अंसारी को। तो ये जो गुंडों को जिताने की जो पॉलिटिक्स है, यही वजह है। आज एक सीट ये जीत सकते हैं क्योंकि यहां का कंपोजिशन उनके फेवर में, पर पूरा प्रदेश हार रहे हैं। इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि ये गुंडों की सरकार चलाते रहते। इन्हें आप देखिए ना कि ये सीट वो जीतेंगे, आपके हिसाब से वो प्रदेश हार रहे हैं, बट मऊ कम से कम आप समाजवादी पार्टी, आरएलडी और एसबीएसपी को दे रहे हैं। चलिए अगली सीट पे चलते हैं, सरोजनी नगर देखते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज, वी वर टॉकिंग अबाउट पास्ट रिकॉर्ड. सरोजनी नगर सीट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग वन बिकॉज you had a husband-wife duo vying to get a ticket. The sitting MLA was in fact the Women and Child Development Minister in the Yogi Adityanath cabinet. Her husband, who had earlier been jailed, also wanted this ticket. Both of them didn't get it. Instead, former ED official Rajeshwar Singh has been given the ticket. And in this urban Brahmin population seat, Abhishek Mishra, a close aide, a professor, Samajwadi Party candidate is Abhishek Mishra. Rohit Jakhar, your prediction for this, कौन जीतेगा? अभिषेक मिश्रा, राजेश्वर सिंह? अभिषेक मिश्रा जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मुद्दे किसान, कमेरे, बेरोजगार, वंचित युवाओं की एकजुटता है। पर सरोजनी नगर में किसान कहां से आ गए? सरोजनी नगर तो प्रॉपर शहरी सीट है। मैडम मैं कह रहा हूँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी पे जो लठ तंत्र का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद में किया, उसके रेप्लिकेशन पूरे उत्तर प्रदेश में इनको देखने को मिलेंगे। और जो वादे इन्होंने युवाओं से, मिस्टर राजगोपालन, बेरोजगारी, महंगाई, आप स्माइल कर रहे हैं, बट फैक्ट इज बेरोजगारी, महंगाई, कहीं भी शहर में जाइए 1000 रुपए का सिलेंडर होगा, पीपल विल बी एंग्री. मिस्टर राजगोपालन, सुनिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इश्यू, नो डाउट, क्योंकि कोरोना में 2 साल में मार खाया जनता लोग प्लस माइग्रेंट्स, सच्चाई बात है, लेकिन कितना डेवलपमेंट हुआ है आपको तो पता होना चाहिए ना जी. जाकर साहब अभी चुनाव का भाषण का तरह टेलीविजन में भी भाषण देने लग गया, लेकिन हकीकत ये है राजेश्वर सिंह साहब का सभी बहुत है. इधर मुझे खर्च कर लेना पद्मजा, ये अटल बिहारी वाजपेयी का ये लेग भी है. मैं क्विक रिस्पॉन्स, देन आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट सीट. लेट्स कीप दिस क्विक. रोहित जाखड़, देखिए, बेरोजगारी और महंगाई लड़ाई पेट की भूख की है राजगोपालन जी, और जो लोगों हजारों किलोमीटर चल के कोरोना काल में जब वो बसें नहीं निकल पाई, अब चुनाव में हर बसों का इस्तेमाल खूब हुआ है रैलियों में पब्लिक को लाने के लिए,
लेकिन उनके लिए नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं मेरा नमक खाया है, वो नमक खिलाने वाले कौन होते हैं? आप नमक की बात कर रहे हैं, कल नमक का हिसाब भी हो जाएगा, बस 12 घंटे में पता चल जाएगा। नमक से बात करते हैं रायबरेली की, क्योंकि वहां पर वी हैव अ डिफेक्टर, somebody who was supposed to be a very close aide of Priyanka Gandhi was seen in all campaigns for Sonia Gandhi. The Raebareli seat in fact was represented by her father for the longest time, but after his passing away, Aditi Singh took on the mantle. She was in the Congress, now she's contesting from the BJP. RP Yadav, Samajwadi Party. Let's call this seat. Who is going to win Raebareli? पहले अमेठी लोकसभा में कांग्रेस lost to Smriti Irani, and now it seems that Aditi Singh is going to win this seat, and she's going to win this seat with a vote share of 55%. कौशलकांत मिश्रा, कांग्रेस की जो एकदम क्लोजेस्ट एड थी, 55% वोट से अब आपकी पार्टी को जिता सकती हैं रायबरेली, ये हमारा प्रेडिक्शन है। कौशलकांत मिश्रा। पद्मजा जी, इसके पहले मैं पिछले वाले पे जाऊंगा, सरोजिनी नगर जहां राजेश्वर सिंह जी की बात हो रही थी। आप देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा जो आता है और महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दा पूरे प्रदेश में है। तो जब विपक्ष को सूट करता है, गांव और रिलीजियस और जात की जब बात आती है, तो वो उसको वहां रखते हैं। और राजेश्वर सिंह जी जैसा क्लीन आदमी, जिसने करप्शन के लिए इतना बड़ा काम किया है, उनकी क्लीन छवि थी। उसके बाद, और मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा, लखनऊ में जो शहरी एरिया, जो सरोजिनी नगर का शहरी एरिया था, उस एरिया में पिछली बार केवल 45% वोट हुआ था, इस बार वो वोटिंग परसेंट बढ़कर के 53% हो गया है। जो ये बताता है कि वो लोग, सरोजिनी नगर के लोग, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके वोट करने जा रहे हैं। और वहां चूंकि ब्राह्मण पॉपुलेशन करीब 90,000 के आसपास है, इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को दिया था। लेकिन उसके बाद भी भले से ही अभी आप देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी सीटें आप जीत रहे हैं, पर यह याद रखिएगा कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भले से ही आप हारें, और स्पेशली अगर आप जीते, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये रोज लोगों को कचोटता है। लखनऊ कैंट, ब्रिजेश पाठक मंत्री हैं, एक सेकंड, ब्रिजेश पाठक मंत्री हैं, अभी उनको ये सीट दी गई है, बड़े इसके दावेदार थे, बड़े सारे लोग यहां से लड़ना चाहते थे, अपर्णा यादव भी was in the fray, you also had Rita Bahuguna Joshi who wanted it for her son, but Brijesh Pathak got it, and Samajwadi Party Surendra Singh Gandhi is up against him. Mr. Rajgopalan, who do you think is going to win? Is it going to cost the BJP to not field Rita Bahuguna Joshi's son? नहीं, ब्रिजेश पाठक रीटा बहुगुणा जोशी का लड़का तो कल ज्वाइन किया ना एसपी में, आखिर He's gone to SP, yes. पता नहीं था वो हार रहा करके, लेकिन ब्रिजेश पाठक का आगे है मेरा ख्याल से। Okay, ब्रिजेश पाठक आगे हैं। Let's call it Brijesh Pathak versus Surendra Singh Gandhi. Who is going to win? It's going to go to the BJP. So you've got those 10 key seats. I want to quickly, before we end, recap for you all the 10 big seats and who we have given it to. You've got Lucknow Cant going to the BJP. You've got Kairana going to the Samajwadi Party. You've got Thana Bhavan going to, all right, you've got Kairana going to the Samajwadi Party. That is what we are giving Nahid Hassan. Let's quickly go through all of the seats and see what are the results going to be. Mathura is going to go to Shrikant Sharma. It's again going to go to the BJP with a 49% vote share. The next seat we are calling is that of Sardana. And Sardana, there is a big upset. Samajwadi Party, we are calling it for Atul Pradhan. So you have a sitting MLA who is going to likely be defeated, Swami Prasad. All right, we've got Swami Prasad Maurya losing from Fazil Nagar. That is what we are saying. Surendra Kushwaha of the BJP is going to win Fazil Nagar. It seems this OBC strongman could bite the dust. Thana Bhavan is a tie. We are not willing to call it just as yet. So we've made some very audacious predictions here. Swami Prasad Maurya likely to lose, Suresh Rana likely to lose, Sangeet Som likely to lose. Let's see, 12 hours, you can hold us to our word. For the time being, thank you very much all gentlemen for having joined us, taking a very quick break. On the other side, we get you shocking numbers from Punjab, and it's just not just about one state, it is about what those numbers tell you about the next 3 years. Don't go anywhere.